یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے کوئی اسٹوڈنٹ تھا وہ بہت نالائق تھا، ٹھیک ہے، پھر اچانک نہ وہ کسی کلاس میں نہ وہ اچھے مارکس لینا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اچانک اس نے بڑی اچھی پوزیشن لینا شروع کر دی، اور پھر بس وہ پھر لیتا ہی چلا گیا، موٹیویٹ ہو گیا نا۔ یہ ہوتا ہے ایسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، پہلے ایک آدمی ہے، کوئی شخص ہے، وہ اس کا کوئی کاروبار کوئی بزنس اچھا نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے، پھر اچانک نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچانک وہ اس کا کاروبار بھی اچھا چلنا شروع ہو گیا، اس کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، پہلے کوئی آدمی ہے وہ کوئی جاب کر رہا تھا، اس کی جاب وغیرہ بھی کوئی صحیح نہیں چل رہی تھی، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک فیلڈ میں کام کرتا ہے کبھی کسی دوسری فیلڈ میں کام کرتا ہے، پھر اچانک اسے کو بہت اچھی جاب مل گئی اور پھر وہ مستقل سیٹ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر تغیر، اچانک سڈن ویریشن دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لوگوں کے مزاج میں بھی ہوتی ہے، لوگوں کی ڈیلنگ میں بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں، گلی محلے میں، آپ جہاں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، کوئی آدمی تھا وہ بہت خراب تھا، پھر وہ اچانک صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اچانک وہ راہ راست پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کی اکثر چیزیں بہت اچھی ہو گئی، درست ہو گئی، پھر وہ ترقی بھی کر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سڈن ویریشن ہے، جو اچانک یہ جو پروسیس، اچانک تبدیلی جو آتی ہے، جو سڈن چینج آتی ہے، یہ آپ نے اکثر آبزرو کی ہوگی، رائٹ۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ سڈن نہیں ہوتی، یہ اچانک نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں، کوئی تبدیلی کی جو وجوہات ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے پیراڈائم شفٹ، ٹھیک ہے۔ پیراڈائم بیسیکلی کوئی آرگن نہیں ہے، پیراڈائم ایک دماغ کی کنڈیشننگ ہے، دماغ کی جو سوچنے کا جو پیٹرن ہے، جو تھاٹ پیٹرن ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا برین کی جو کنڈیشننگ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ پیراڈائم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا، جب تک پیراڈائم چینج نہیں ہوگا، آپ جس پیٹرن پہ پہلے سوچ رہے تھے آپ اسی پہ سوچتے رہیں گے۔ آپ کا جو ہیبٹ پیٹرن تھا، جو تھاٹ پیٹرن تھا پہلے شفٹ سے پہلے، پیراڈائم شفٹ سے پہلے، وہ ویسا ہی رہے گا، آپ کے حالات بھی ویسے ہی رہیں گے، آپ کی سیلف گروتھ بھی ویسی ہی رہے گی، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ویسی ہی رہے گی، آپ کی عادات بھی ویسی ہی رہے گی۔ جو ہی پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، آپ کی عادات بھی یکسر چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا تھاٹ پیٹرن یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ کا ایک نیا روپ سامنے آ جاتا ہے، آپ کی ایک نئی شکل سامنے آ جاتی ہے، آپ ایک نئی پروڈکٹ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک نمایاں کامیابی حاصل کریں، نمایاں گروتھ ہو، آپ کی نمایاں سیلف ڈیولپمنٹ ہو، آپ کا کاروبار نمایاں حیثیت اختیار کرے، اگر آپ تعلیم کے میدان میں ہیں تو آپ تعلیم میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اچھی جاب ملے، آپ کو جاب میں نمایاں کارکردگی دکھا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ پیراڈائم شفٹ کے ساتھ منسلک ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اصل میں پیراڈائم شفٹ ہے کیا؟ پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں پیراڈائم کیا ہے۔ پیراڈائم دیکھیے، دماغ کے جو 3 حصے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ یہ سیگمنٹ فرائڈ نے بھی اس کو ایکسپلین کیا، بیسیکلی 3 حصے نہیں ہیں، اس کی 3 صلاحیتیں ہیں، یا ان کی 3 کیٹیگریز کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کانشیس مائنڈ، جو ریزننگ والا مائنڈ ہے، جو کیلکولیشن والا مائنڈ ہے، ایک ہے سب کانشیس مائنڈ، اور ایک ہے انکانشیس مائنڈ، ٹھیک ہے۔ انکانشیس تو وہ اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ علیحدہ کر رہے ہیں، پیچھے رہ گئی 2، ایک ہے کانشیس مائنڈ جو کیلکولیشن والا مائنڈ ہے، یعنی تھاٹ سب سے پہلے کانشیس مائنڈ میں آئے گی، کانشیس مائنڈ سے پروسیس ہو کے وہ سب کانشیس میں چلے جائے گی، یعنی جو آپ کی اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ اب جو پیراڈائم کا شفٹ ہے، جو پیراڈائم ڈیولپمنٹ ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ میں ہی ہوتی ہے۔ پیراڈائم شفٹنگ، پیراڈائم ڈیولپمنٹ، پیراڈائم کی جو بھی چینجز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ یعنی تحت الشعور میں ہی ہوتی ہیں۔ پیراڈائم ڈیولپمنٹ ہوتی کیا؟ آپ
जितना अरसा किसी सोसाइटी में गुजारते हैं, किसी पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बैठते उठते हैं, पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ उठते बैठ, आपकी आदत और आपका सोचने का अंदाज भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये पैराडाइम है, यानी बेसिकली पैराडाइम आपकी दिमाग की कंडीशनिंग है। बेसिकली पैराडाइम आपका थॉट पैटर्न है, आपका हैबिट पैटर्न है, जो कुछ अरसा किसी सर्टेन माहौल में रहने से डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप गलत लोगों में बैठते हैं तो आपका पैराडाइम भी वैसा ही होगा। अगर आप अच्छे प्रोग्रेसिव लोगों में उठते बैठते हैं, उनके साथ डील करते हैं, या आपकी आदत अच्छी हैं, आपकी आदत प्रोग्रेसिव हैं, तो आपका पैराडाइम भी प्रोग्रेसिव होगा। अब होता क्या है कि जो अचानक वेरिएशन, जो आपने सवाल किया है, जो अचानक वेरिएशन है, ये एक्चुअली अचानक नहीं होती। कुछ अरसे से आप वैसा हैबिट पैटर्न डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप वैसे लोगों में बैठ रहे होते हैं, वैसे माइंडसेट के साथ आपका उठना बैठा होता है। इसलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, कंदम जिन्स बाहम जिन्स परवाज। ठीक है, ये फारसी का मुहावरा है। और जब आप जैसे लोगों में, जैसे माइंडसेट में, जैसी गैदरिंग में, जैसे माहौल में बैठेंगे, आपकी दिमाग की कंडीशनिंग वैसी ही हो जाएगी। और वो जो दिमाग की कंडीशनिंग है ना, वो आपका पैराडाइम कहलाता है। और ये स्टोरेज डिवाइस यानी सबकॉन्शियस के पास ही होता है, वही सबकॉन्शियस में ही डेवलपमेंट होती है। वो जब अचानक शिफ्ट होता है ना, तो आप फिर देखते हैं और कहते हैं यार ये बंदा तो कल को ऐसा था, आज ये अचानक ऐसे कैसे हो गया। वो बेसिकली काफी अरसे से वो कोई अच्छा एक्ट कर रहा था, वो कोई अच्छी आदत अडॉप्ट कर रहा था, वो किसी अच्छे थॉट पैटर्न पे उसने सोचना शुरू कर दिया था। वो फिर अचानक कुछ अरसे बाद पैराडाइम शिफ्ट हुआ और उसकी आदत भी अच्छी हो गई, उसका थॉट पैटर्न भी अच्छा हो गया। वो फिर प्रोग्रेस कर देगा, वो फिर आपको नुमाया लगेगा, वो आपको फिर डिफरेंट लगने लगेगा। बस यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि पैराडाइम शिफ्ट आपका जब तक नहीं होगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो ही आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा, आपकी आदत, आपकी डेवलपमेंट, आपका थॉट पैटर्न ये अक्सर चेंज हो जाएगा और आपकी जिंदगी में नुमाया तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर सबकॉन्शियस इसमें फिर अपना रोल प्ले करता है ना। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सबकॉन्शियस उसको मादी या माली मावन में तब्दील करके वो चीजों को आपके सामने लेके आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी इसी उसूल पे काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बाद लोगों ने गलत समझा है। ये जो सीक्रेट की, जो द सीक्रेट मूवी आई थी, आपने भी देखी होगी, मैंने आपको कहा था आप देखिए, आपने देखी होगी। आप देखने के बाद आपने सिर्फ यही समझा होगा कि खाली मैं ऐसे सोचूंगा और बैठ के बस सोचता ही रहूंगा तो मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगी, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको बड़े यकीन के साथ काम भी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन की जो बेसिस हैं वो सारी पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर ही हैं। जब तक पैराडाइम आपका प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, आपके अंदर वैसी तब्दीली नहीं आएगी जैसी आप चाह रहे हैं। आप चाह भी रहे हैं वैसा बनना, लेकिन आपकी सोसाइटी डिफरेंट है, आपका उठना बैठना डिफरेंट है, आपकी आदत डिफरेंट है, आपकी सिटिंग्स डिफरेंट है, आपका थॉट पैटर्न डिफरेंट है, तो वो तब्दीली नहीं आएगी। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा करना लेकिन वैसे नहीं होता। भाई नहीं, आपका जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा आप वैसा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि रेगुलर नमाज पढ़ें, लेकिन आप वैसे माहौल में नहीं बैठते, वैसे लोगों के साथ नहीं बैठते, आपका आपका सोचने का अंदाज वैसा नहीं है, आपका पैटर्न वैसा नहीं है, थॉट पैटर्न वैसा नहीं है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते हैं प्रोग्रेस करना, ठीक है, लेकिन आप वैसे लोगों के साथ नहीं बैठ रहे, आप वैसा नहीं सोच रहे, प्रोग्रेसिव लोगों की आदत आप अडॉप्ट नहीं कर रहे। प्रोग्रेसिव लोग किस तरह सोचते हैं, आप वो चीजें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, आपके अंदर वो फिर तब्दीलियां नहीं आएंगी, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। बस ये इतना सा फिनोमेना है, ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है पैराडाइम। अच्छा, मैं एक स्टेप आगे जाने को,
अब अगला सवाल ये होगा कि पैराडाइम शिफ्ट में कितना अरसा लगेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें डेकेड्स भी लग सकते हैं, इसमें दहाइयां भी लग सकती हैं, इसमें 2-3 साल भी लग सकते हैं, इसमें 5 साल भी लग सकते हैं। ये सारा कुछ आपके यकीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है। मेहनत शर्त है, हैबिट पैटर्न शर्त है, थॉट पैटर्न शर्त है। मिनिमम इसको ना 6 महीने चाहिए होते हैं। पैराडाइम डेवलपमेंट में सर्टेन, जिस तरह का आप जा रहे हैं, सर्टेन टाइप ऑफ पैराडाइम डेवलप करने में मिनिमम 6 महीने चाहिए होते हैं। ऑन एन एवरेज 2-3 साल इसमें लग जाते हैं, लेकिन बाज केसिंग में दहाइयां भी लगती हैं, 8-8, 10-10 साल भी लगते हैं। ठीक है, आप गूगल करके देखें पैराडाइम शिफ्ट, तो फिर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है। तो ये अच्छा, ये केसेस आपने प्रैक्टिकली कुछ लोगों के साथ देखे भी होंगे, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद उन लोगों की जिंदगी में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। भाई वो अचानक नहीं होती, वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सोच रहे थे, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, उनमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, उनमें कुछ डेवलपमेंटल एटीट्यूड भी थे। ठीक है, तो वो एक अरसे से उस पर साथ साथ वो भी चीजें चल रही थी। जब पैराडाइम मुकम्मल डेवलप हो जाता है, फिर वो ऑटो पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है ये। और ये सारा सोच की सतह पे है, सारा कुछ सोच की सतह पे और आपके यकीन के साथ है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली वैसा सोचने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको मुकम्मल आदत वैसी डेवलप करना पड़ेंगी, आपको थॉट पैटर्न वैसा डेवलप करना पड़ेगा। बेसिकली और पैराडाइम डेवलपमेंट, आपको वैसा पैराडाइम डेवलप करना पड़ेगा। फिर आपका जो सबकॉन्शियस है वो वैसी चीजों को अट्रैक्ट करके उनको माली या मादी मावन में तब्दील करके आपके सामने लाएगा। ये फिनोमेनन है असल। अब इसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का भी किरदार है। ठीक है, ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जिन लोगों ने रोंदा बारन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो उसने डेफिनेशन की है, दी सीक्रेट, या जिन लोगों ने खाली दी सीक्रेट मूवी देखी है, या जिन लोगों ने वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना है कि कायनात की पूरी ताकतें मिलकर वो चीज आपके सामने ले आती, बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअली किस ग्राउंड पे होता है, पर्टिकुलर रीजंस क्या है, बेसिकली इज योर पैराडाइम डेवलपमेंट। एक बच्चा है, छोटा बच्चा, पैदा होने से लेके नॉर्मली 6-7 साल तक उसका पैराडाइम डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसमें वक्त लगता है। ठीक है, 7 साल के बाद, ठीक है, 7 साल तक, अराउंड 6 या 7 साल तक उसका पैराडाइम मुकम्मल डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है ना वो कॉन्शियस माइंड भी नहीं होता। जो बहुत छोटा बच्चा है उसके पास 2-4 साल तक तो कॉन्शियस माइंड नहीं होता, उसको नहीं पता होता ये इस सॉकेट में उंगली नहीं देनी क्योंकि ये इसमें पावर है। ठीक है, ये कोई सांप है तो इसको नहीं टच करना, कोई खतरनाक जानवर है उसको टच नहीं, उसके पास कैलकुलेशन वाला माइंड नहीं होता, उसके पास रीजनिंग वाला माइंड नहीं है। ठीक है, गर्म चीज को, गर्म सतह को हाथ नहीं लगाना, उसे नहीं पता। ठंडी सतह को, बहुत ज्यादा ठंडी सतह है उसको हाथ नहीं लगाना, उस बेचारे को नहीं पता होता। एज लॉन्ग एज उसकी पैराडाइम डेवलपमेंट होती है, सबकॉन्शियस की डेवलपमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको पता चलना शुरू हो जाता है। कुदरत का एक निज़ाम है। नॉर्मली 6-7 साल तक उसका पैराडाइम डेवलप होता है, प्लस माइनस 1 ईयर 2 ईयर इज पॉसिबल। कईयों का जल्दी होता है, कहीं पर देर 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 कहीं को देर लगती है। ठीक है, बस ये सारा फिनोमेना है। जब तक आपका पैराडाइम उस तरह का डेवलप नहीं होगा तब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा। आप में वैसी तब्दीली जैसी आप सिर्फ सोचते हैं नहीं आएगी। ठीक है।